नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं मेन से बड़ा चंडीगढ़। आइसर मोहाली का 14वां दीक्षांत समारोह था और इस मौके पर बच्चे काफ़ी उत्साहित थे और मेरे वहाँ के प्रोफेसर से, वहाँ के डायरेक्टर से, उनके जो डीन हैं, उन सबसे बात हुई और इस मौके पर मैंने बच्चों से भी बात करी जो अब देश का भविष्य है और अब ये अपने अपने जिम्मेदारियां संभालेंगे। पीएचडी कर रहे हैं और साइंस इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर विज्ञान का ही रिसर्च होता है। और मैं उन बच्चों को भी जानकारी दे दूँ जो लोग यहाँ पर आफ्टर +2 एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका फोकस आगे जाके साइंटिस्ट बनने का है, रिसर्चर बनने का है, तो वो +2 के बेस पर +2 के बाद एक जेई का पेपर होता है, जेई मेन का, उसको क्लियर करना होता है। उसमें आपको अच्छे नंबर लेना होता है या फिर इनका अपना एक टेस्ट होता है आइसर का, वो उसको आप पास करके और यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि मेरी वहाँ के प्रोफेसर से बात हुई, उन्होंने मुझे जानकारी दिया। लेकिन इन बिटवीन मैंने जो बच्चों से बात करी, जो बिल्कुल अलग बच्चे थे, बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, आपको अलग ही पता लगेगा कि वाकई ये रिसर्चर है, ये साइंटिस्ट है। और ये बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर यूके पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ यूएस में जा रहे हैं पीएचडी करने के लिए, और लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं। जो कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। आपको मैं बच्चों की बात सुनाता हूँ, एक एक करके। कुछ लोग केरला से हैं, कुछ एमपी से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से आए हैं और लोकल भी हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है। स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी यहाँ पर गेम्स हैं। जो लोग, जैसे अभी आप खुद सुनेंगे, भाई आपको बात सुनाता हूँ बच्चे क्या कहते हैं, कितने उत्साहित हैं और किस ढंग से अपने प्रोफेसर का जो है बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में थे, जिससे कि बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है। तो आप पूरा वीडियो देखें, पूरी खबर देखिए और तब तक खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। Tell me, what is your name first, sir? मेरा नाम अप्रमेयन है, अप्रमेयन देसिकन। Okay, you are also doing PhD? आई एम मास्टर स्टूडेंट। You are master student? Yeah. And what is, now you are getting today degree, na? Yes. So what is your next plan, sir? I'll be doing a PhD in physics. I'll be doing it in the US. Okay. I'll be continuing to do it in the field of quantum information science. You are also going to prepare for the US also, eh? Yes, So you spent, I think, 4 years or 5 years? 5 years. 5 years. So how your experience, sir, in ICER, sir? It's been great. I mean, like, of course, first few years were online, but even when it was online, we had like really good efforts from the faculty in teaching us through the whole platform itself. And then the transition was also very easy, going from online to offline. And we have some great faculty who, I mean, like, provide the help that is needed always, so we can meet them in their office. So it's been a very great experience. Apart from that, we get good holidays, but it's not just to spend for vacation. We get good holidays so that we can go and do more research. So that also gave us a lot of big opportunity to go and do a lot of research during the time that was given by the institute itself. So it has been a great experience. So Okay. So tell me, sir, now you are, all our students not going to doing the PhD, na? Right. So I want to know what is the placement criteria, sir? So I mean, yes, most people do PhD here because that's what we do science for. Because we want to further our understanding of whatever science there is to learn, and as a result, that's why you find many people in PhDs. But there are people who also find their interest in other subjects, because our institute offers like data science and humanities and so many other courses. So you also find people going into other places, getting placed in jobs that are according to their interests too. So placements are also available apart from doing higher research. Okay. So how support you got from ICER, sir, here? I mean, it has always been great because, I mean, one part of it is like applying. The next part is what the administration and the people here also give us. We get recommendations from our faculties. We get enough mentorship and whatever advice we go to them, they always are happy to be there. So it has been great. I mean, like, ICER has always been there. I mean, like, I'm pretty sure. I mean, I'm going to US now. I'm pretty sure they have a big role to have played in this process. What tips you will give? Which student are going to preparing to admission here, sir? I mean, tips. I'm not a very big person to give tips, but No, nevertheless, just you spent 5 years here. You, Sure. Sure. I mean, one thing is to not learn for the grades. I think it's
it's this mindset that people have to learn for the grades. I think, especially in research, engineering, I'm not very sure, but at least in research, you concentrate on what you can learn, and then use that to motivate yourself. Of course, your grades are important, but it will fall in place once you have that interest in whatever research that you want to do and whatever field you are interested in, and do all other stuff too. I believe, like music, sports, and there's ample opportunities available in the institute, and I think that's the way to go. ठीक है, थैंक यू Thanks so much. थैंक यू नाइस मीटिंग, थैंक यू So much. क्या नाम है सर आपका? रॉबसन गालिब अहमद। अच्छा, 5 साल हो गए आपको यहाँ पे डिग्री, आज आपको डिग्री मिल रही है। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर यहाँ पे? अच्छा ही था, बहुत अच्छा प्रोफेसर से मुलाकात हुई, उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा टाइम मिला रिसर्च के चीज़ें सीखने के लिए, कैसे चल रहा है सारा दुनिया में रिसर्च। ये बिकॉज इट्स लाइक नेशनल लेवल। रिसर्च किया आपने, एक्सप्लेन बताइए। मैंने क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी में रिसर्च किया हूँ। व्हाट इज क्वांटम इंफॉर्मेशन, जरा बताइए पब्लिक को। सो जो हमारा अभी हम इंफॉर्मेशन एज में है, और जो हमारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कम्युनिकेशंस ऑल वो सब चीज़ें क्लासिकल इंफॉर्मेशन थ्योरी के मुताबिक हम करते हैं। तो अब लास्ट सेंचुरी में हम लोगों का as a human being we got to know about the new kind of physics called quantum physics, and from that क्वांटम इंफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट आया। तो अभी लोगों ने समझ रहे हैं कि अगर वो उस क्वांटम इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा देखते हैं तो उससे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत और भी बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन की ये चीज़ें हो सकते हैं। तो मैं उसमें रिसर्च किया हूँ। ओके सर, यहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा फैसिलिटी है ना? हाँ तो आपने स्पोर्ट्स में यहाँ पे क्या पढ़ाई के अलावा, हाँ, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, उसके बाद आपने क्या स्पोर्ट्स में भी क्या क्या मैंने कभी कभी वो माइल्स क्लब है, तो वो हमारा एक क्लब है जो रनिंग के लिए क्लब है, रनिंग जॉगिंग, ये तो मैं उसमें कभी कभी पार्टिसिपेट किया हूँ। उसके अलावा मैंने लाइक रेगुलरली एक्सरसाइजेज वो भी मैं करता हूँ, बट स्पोर्ट्स में मैं लाइक वो जो कंपटीशन वगैरह उसमें मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। दो जो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू प्रिपेयर इन आईसर, उनके लिए क्या कहेंगे आप जिनको एडमिशन लेना है यहाँ पे? मैंने बोलूँगा कि पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके क्यूरियोसिटी होना चाहिए साइंस में। अगर प्योर क्यूरियोसिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत रिसर्च बहुत ही अनसर्टेन एक चीज़ है, लाइक हमको पता नहीं चलता पहले से कि कुछ होगा कि नहीं व्हेन वी स्टार्ट आउट डूइंग सम वर्क। सो वन नीड्स टू बी वेरी परसिस्टेंट एंड लगे रहना चाहिए रिसर्च के लिए, वो क्यूरियोसिटी रहना चाहिए। बहुत बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, सिर्फ स्मार्ट बनने से नहीं होता, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है इसके लिए। +2 कहाँ से किया था आपने? वेस्ट बंगाल में ही। वेस्ट। हाँ। वेरी गुड, थैंक यू। यस सर, जी। क्या नाम है आपका? अनुभव राजियान। अनुभव राजा, यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम हरिद्वार। हरिद्वार, जी। उत्तराखंड से? उत्तराखंड से। आपने क्या किया यहाँ पे? जी मैंने BSMS किया है, लाइक 5 ईयर BSMS 12 डिग्री यहाँ से केमिस्ट्री में, और मेरा फील्ड है कंप्यूटेशनल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। ओके जी। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे जो केमिस्ट्री हम जानते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि हल्दी है उस पर सोप टच हो जाए लाल हो जाता है, ये केमिस्ट्री है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन्हीं को हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में कंप्यूटर तकनीक के मदद से उनको समझते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ताकि हम कम से कम एक्सपेरिमेंट करके और यूज़फुल रिजल्ट्स पा सके कम से कम केमिकल्स यूज़ करके। तो कंप्यूटर तकनीकी की मदद से जो केमिस्ट्री होती है उसको कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री करते हैं, और मैं वही चीज़ मैं हूँ। तो राइट नाउ यू आर आल्सो गोइंग टू डू PhD? जी। कहाँ से कर रहे हो? जी मैं UK से PhD कर रहा हूँ, मैं करूँगा जी। कैसे करोगे अभी? जी। गुड। तो यहाँ पर 5 साल आपने लगाया, कैसा एक्सपीरियंस है 5 साल का आपका? काफ़ी ही अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक बहुत चीज़ें यहाँ पे आने के बाद टेस्ट हुई, लाइक रॉबसन मेंशन, लाइक इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप स्मार्ट है और आपको लाइक इंटेलिजेंट है, वो चीज़ के अलावा आप में कितना पेशेंस है, कितना आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, वो चीज़ें मैटर करती है। तो वो स्किल्स मैं सोचूंगा कि मैंने यहाँ पे आके ज़्यादा सीखी कि हार्ड वर्क किस तरीके से करना, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना, और किस तरीके से लिमिटेड टाइम में एफर्ट्स डालना। मेरा खुद का इंटरेस्ट था, तो मेरा जब मैं आया था यहाँ पे तो फिज़िक्स का बहुत इंटरेस्ट था मुझे, और बट फिर आजकल बीमारियों का इतना ज़्यादा हो रहा है, एंड उसी साइड में मतलब वो एक पर्सनल मोटिवेशन तो था ही, बट ऑल्सो एकेडमिकली ऑल्सो उन्होंने प्रोफेसर्स ने भी मुझे ऐसे कंफर्ट दिया था कि ये मतलब संतुष्टि दी थी कि मतलब ठीक है तुम्हें स्विच करना है तो तुम करो,
तुम्हें कुछ मदद चाहिए, ठीक है, तुम्हारा बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक्स्ट्रा मटेरियल देंगे, तुम उसमें से कर सकते हो और फिर तुम कैचअप कर सकते हो। एंड बिल्कुल भी ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं लगा, ऐसे लिटरली 2-3 महीने थे मेजर सेलेक्ट करने के लिए, और तभी मैंने डिसाइड किया कि हाँ बायोलॉजी करना है। उससे पहले तो पूरा फिज़िक्स ही था, तो उसमें फिर प्रोफेसर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था। डिसीजन उन्होंने मतलब बोला था कि ठीक है फिज़िक्स में ये सब है, बायोलॉजी में ये सब है। इवेंचुअल डिसीजन मेरा खुद का ही था, पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट दिया हुआ था। तो फिर इट वाज वेरी गुड। आगे की प्लानिंग तो अभी फॉर द टाइम बिंग पीएचडी का ही प्लान है मेरा, और इवेंचुअली यही मोटिवेशन तो मेरा, जैसे मैंने आपको बोला था, बायोलॉजी का पर्सनल मोटिवेशन जो था कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स और पेशेंट के हेल्प के लिए रहे, उस टारगेट पे मेरी नज़र है, और इवेंचुअली फिर उसी पे ही मुझे और काम करके इम्पैक्ट लाना है इन डे टू डे लाइफ। सर एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है इंडिया में एजुकेशन लेते हैं, यहाँ सस्ती एजुकेशन है, लेकिन बाहर नहीं है कि इंडिया में सस्ती एजुकेशन है, क्योंकि मेरा खुद का थीसिस अभी जर्मनी से मैंने किया था। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स खुद थे जो जर्मन इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रहे थे, उल्टा वहाँ पे ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। तो जैसे यहाँ पे जितना भी सस्ता था, ओवरऑल सस्ता ही था वहाँ पे। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन का, तो वन थिंग अबाउट नॉलेज इज़ इट डज़ नॉट नो बाउंड्रीज, नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसका वो दैट शुड बी इम्पोर्टेंट। आई नो कि लैंग्वेज इज़ एन आइडेंटिटी, बट कंट्रीब्यूशन इज़ प्रोग्रेस, एंड वी नीड अ ट्रेड ऑफ between your identity as an Indian as well as a contribution to society as a whole. And अभी जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, आगे प्रोग्रेशन चल रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर गेटिंग लेस एंड लेस apparent. It's now more free for everyone, and we should progress to that, because at the end of the day we are humans. It's not हिंदू है, इंडियन है, अमेरिकन है, वो नहीं फ़र्क पड़ता है। कल को कोई प्रॉब्लम आए, डिजीज़ आए, वो नहीं देखेगा कि इंडियन है तो इंडियन को बीमारी दो, अमेरिकन है अमेरिकन को बीमारी दो, ऐसा नहीं चलता है। तो वही है कि थोड़ा बियॉन्ड प्रोग्रेसिव लुकआउट करना है, और वही प्रोग्रेसिव लुकआउट आइसर मोहाली में बहुत ज़्यादा है। तो एंड वो पुश करते हैं स्टूडेंट्स को कि इतना आगे प्रोग्रेसिव में चले। जैसे इवन आपने बताया कि बायोलॉजी आपकी नहीं है, तो इसको एडमिशन लेना है, तो आपका टेस्ट हुआ होगा इससे पहले? हाँ जी। तो उन्होंने फिर कैसे आपको अलाउ किया, ऐसा कुछ? तो सिस्टम उनका जो मेरा था, इनका आइसर का खुद का टेस्ट होता है, उसमें चारों सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। बट मैंने जब एग्ज़ाम दिया था वो, तो मैंने बायोलॉजी का सेक्शन मैंने लिखा ही नहीं था उसका कुछ, बट फिर भी मेरा हो गया था पूरा क्लियर। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं मेरे यही बैच में, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैथ्स ड्रॉप किया था और फिर भी उनका आया है, और जिन्होंने मेरी तरह बायोलॉजी भी ड्रॉप किया था फिर भी उनका क्लियर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऑफ कोर्स जिनका चारों सब्जेक्ट्स है इट्स अ बैक फुट, बट इट्स नॉट लाइक इट्स इम्पॉसिबल। मेरा नाम है डॉक्टर इंद्रनील बैनर्जी। मैं बायोलॉजिकल साइंसेस का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, और साथ साथ मैं एसोसिएट डीन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, मैंने आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट से बात किया, दे आर वेरी सेटिस्फाइड सर यार, तो वो दे हैव नो एनी कंप्लेंट्स और दे आर वेरी हैप्पी। सो क्या कारण है सर, वो अभी बहुत ही तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की, ऐसा क्या आप इनको करवाते हैं? तो हम लोग को तो ये कोशिश रहता है, जो सारे लोग जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हमारा पर्सनल रिश्ता भी होता है, हम लोग पर्सनली बातें करते हैं, उनका कोई दिक्कत हो रही है या जो भी है, उसके साथ साथ ये लोग एक साथ रहते हैं हॉस्टल में, एक साथ खाना खाते हैं, एक फैमिली बन जाते हैं। Some are very good in sport also, just I told We sir, have madam. we have very good sports facility. Yeah. We have various clubs, for example, because सब लोगों का कुछ कुछ हॉबीज़ होते हैं। हम लोग ये बोलते हैं जो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ रिसर्च नहीं है, रिसर्च पढ़ाई तो करनी है, उसके साथ साथ जो हॉबीज़ जो है उसको भी परसू करने चाहिए। किसी को अगर फोटोग्राफी में हॉबी है तो वो लोग फोटोग्राफी करते हैं, किसी को अगर गाना में या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में कुछ हॉबी है तो वो लोग वो भी परसू करते हैं। हमारा डिफरेंट क्लब्स है, नेचर क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, ड्रामा क्लब है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है।
तो सब कुछ है। सो पूरा देश से जब लोग आते हैं, तो स्टूडेंट्स आते हैं, एक साथ रहते हैं, तो एक पूरा फैमिली बन जाते हैं और अपना अपना जो सपने हैं वो सपने वो लोग परसू कर पाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। जी। एक तो है एकेडमिक एक्सीलेंस तो उनको करना ही है, सारे कोर्सेज करना है। और ये जो आइजर का जो कंसेप्ट है इंटरडिसिप्लिनरी, जो ऐसे नहीं है सिर्फ कोई बायोलॉजी कर रहे, जब वो लोग आते हैं प्लस टू करके, वो लोग जितने सारे बेसिक सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, ये सब में ये लोग पढ़ाई करते हैं, ये सब में एक्सपोज होते हैं। तो इसके मतलब इससे क्या होता है, इससे एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। एंड उसके बाद वो लोग मेजर चुनते हैं। अगर किसी को मैथ्स ज़्यादा पसंद है, वो मैथ्स। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।